As you know that the phase 1 of the PFRD grade A 2025 examination is to be conducted on 6th of September and phase 2 is to be conducted on 6th of October, which means if you calculate, you are having around 50 days in your hand to prepare for this examination. And guys, this is a golden opportunity क्योंकि यहाँ पे 28 vacancies have been notified for the recruitment of grade A officers in general stream जो आज तक की सबसे ज्यादा है. बट इस एग्जाम को इस लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर करने के लिए this is very very important to know that you must know the important topics and the sources to prepare those topics ताकि यहाँ पे कम एफर्ट के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ you can easily prepare for the examination and you can clear the examination also. So in this context, today in this session I am going to tell you about the important topics and the sources for the preparation of PFRDA grade A examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion here with respect to the most important topics and the sources to prepare those topics for the PFRDA grade A 2025 examination. So we'll start with the phase 1 first. So phase 1 paper 1, you know these four components are there, that is quant, reasoning, English and general awareness in the paper 1 part. तो यहाँ पे कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बट यहां पे व्हाट आई विल डू, आई विल बी मेंशनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द these components, right? So first of all, quantitative aptitude. So क्योंकि यहाँ पे syllabus defined नहीं है, so it is important for you to know the syllabus exactly, right? So quant में ये सारे topics important है, like HCF and LCM, number system, percentage, ratio and proportion, profit and loss, simple interest, compound interest, then partnership, problems on edges, average, time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and streams, then further mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and 3D. These are the important topics in the quant section. बात करें यहाँ पे सोर्स क्या रेफर कर सकते हैं, सो बोथ सोर्सेज आर वेरी गुड, दैट इज अरुण शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल. तो आप इनमें से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अलोंग विथ यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर 2. Second component is the reasoning. So reasoning में these all are the important topics like alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, sitting arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and the data sufficiency. So these all are the important topics under the reasoning section. And reasoning you can prepare from this very good book, that is Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning, again by the Dr. R.S. Agrawal. And also along with that, previous year paper will always be very very important. Moving on to the third component, that is the English. So all these topics in the English are very very important, like parts of speech, structure of sentence, subject verb agreement, noun pronoun, verbs, tenses, models, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, further article, adjective, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verb, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution. So these all are the important here इन द इंग्लिश कॉम्पोनेंट. एंड वैसे तो आपको इंग्लिश को अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव द रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच इन द इंग्लिश, विच मींस आप यहाँ पे मॉक्स और पीवाईक्यूज की हेल्प से इस कॉम्पोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं. बट अगर किसी को लग रहा है कि नो नो आई नीड टू प्रिपेयर इंग्लिश, तो यस यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, अरिहंत की आती एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश. यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट. ऑल्सो रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर. मूविंग ऑन टू द जनरल अवेयरनेस. तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे क्योंकि बहुत वास्ट नहीं है, पीएफआरडी बहुत ही लिमिटेड जनरल अवेयरनेस है, एंड ओनली दिस विल बी आस्क्ड इन द फेज 1 पेपर 1. तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है. ऑल्सो बिकॉज देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ हियर, यहाँ पे जस्ट यू नीड टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ पेपर वाइज कट ऑफ है, पेपर 1 पेपर 2 के कट ऑफ, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है किसी भी कंपोनेंट के लिए, खास करके फेज 1 में पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ताकि आपका जो टाइम बचे और उसको आप पेपर 2 की प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली फेज 2 में पेपर 2 विल बी अ गेम चेंजर हियर. So यहाँ पे you need to prepare these topics under the general awareness, like first in news, government initiatives, sports, environment, defense exercises, summits and conferences, awards, books and authors, appointments, person in news. And further यहाँ पे banking and finance current affairs are also important, which is going to be asked in the examination. मूविंग ऑन टू द सोर्सेज. तो सोर्सेज में आप यहाँ पे कोई एक न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद द यूनियन बजट की आपको हाईलाइट समरी डेफिनेटली पढ़नी, वहां से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली, ठीक है. देन पीआईबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, एंड एनी
गुड कंपाइलेशन ऑफ बेसिकली मैगजीन या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन जो आपको लगता हो उसे आप रेफर कर लीजिए। योर करंट अफेयर्स कंपोनेंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, लिमिटेड है यहाँ पर, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ फेयर, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। जो कंपोनेंट्स आपके वीक हैं उनको आप वीक रहने दीजिए, नो इश्यूज, ठीक है। पेपर वन फेज वन में उनको वीक रहने दीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करके यू कैन इजिली क्लियर द पेपर वन कट ऑफ। Got it. Moving on to the paper two. Paper two very very important guys. यहाँ पे this is the snippet of the syllabus of commerce and accountancy. यहाँ पे बात करें what are the important topics here. So important topics is introduction to accountancy, theory base of accounting, recording transaction, trial balance, bills of exchange, income statement and balance sheet, cash flow, ratio analysis, accounting for share capital, accounting for bonus shares and rights issue. Then further accounting standards में ये सारे कुछ accounting standards mention है which are important that you have to do. फाइनल कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच यू नीड टू डू अंडर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है इजी ही आते हैं, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है नहीं इसमें। बात करें सोर्सेस की, सो यू कैन सिंपली रेफर द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज आर अ वेरी गुड सोर्स है, तो यहाँ पे आप क्लास 11th एंड क्लास 12th की ये एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। दिस इज द क्लास 11th एनसीईआरटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे क्लास 12th की ये कंपनी अकाउंट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों एनसीईआरटीज यू कैन रेफर अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर आपके लिए जर्नी जो है काफी ईजी हो जाएगी, आपका जो एफर्ट है वो काफी हद तक यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। Moving on to the costing part, so this is the snippet of the syllabus mentioned in the notification of costing. But costing में जो important topics हैं, these all are the important topics in the costing component that you have to do, like overview of cost and management accounting, material cost and labor cost, overhead cost, activity based costing, output or unit costing, job costing and batch costing, contract costing, process or operations costing, service costing or operating costing, then marginal costing, standard costing, budget and budgetary control, and lean system and innovation. So these are the important topics. बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्टली थ्योरी पार्ट ही आता है यहाँ से, बट कुछ बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सिंपली बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ली है इन टॉपिक्स की, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल। बात करें यहाँ पे सोर्सेस की, तो सोर्स के लिए आपको कुछ अलग से बुक रेफर नहीं करनी है, रादर यहाँ पे आप ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कि जो बेसिकली यहाँ पे मॉड्यूल है वो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉड्यूल यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं आप उन्हें ही रेफर करें, ठीक है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर PFRDA ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो जो आपके PFRDA ग्रेड ए के सिलेबस में है आपको सिर्फ वही टॉपिक जो है यहाँ पर रेफर करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द PYQs। थर्ड कंपोनेंट इज द मैनेजमेंट। तो गाइस अगर आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज में RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट पार्ट आपको फिर भी प्रिपेयर्ड है, आपको अलग से यहाँ पर कोई भी एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत है। बट स्टिल अगर आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं RBI ग्रेड बी एग्जाम के लिए, देन ऑल्सो यू कैन इजिली प्रिपेयर फॉर यहाँ पे मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे काफी लिमिटेड टॉपिक्स हैं लाइक मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट एंड HRD। सो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो एक काफी अच्छा कवरेज आपका मैनेजमेंट में हो जाएगा, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द मैनेजमेंट, राइट। सोर्स की बात करें यहाँ पे तो LM प्रसाद, दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने डिस्कस के लिए बहुत अच्छी बुक है यहाँ पर, दैट इज LM प्रसाद, तो इसको आप रेफर करिए, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय LM प्रसाद। दैट्स अ वेरी गुड बुक, दैट्स अ वंडरफुल बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक, ठीक है। बात करते हैं फाइनेंस कंपोनेंट की, तो फाइनेंस में दीज आर द टॉपिक्स मेंशन इन द नोटिफिकेशन अंडर द सिलेबस सेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड बॉन्ड्स यू हैव टू डू, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, forex market, RBI functions and financial institutions, alternate source of finance, changing landscape in banking sector, banking and financial systems in India, direct and indirect taxes, then FRBM and finance commission and inflation। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किस सोर्स से आप रेफर कर सकते हैं, सो यू कैन रेफर दिस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, और कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे रमेश सिंह से भी मिल जाएंगे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह। तो यहाँ से भी कुछ टॉपिक्स जो है आपको फाइनेंस के यहाँ से मिल जाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, एंड ऑल्सो यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर सो दैट यू कैन गेट टू नो कि यहाँ पे एक्चुअल में एक क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरीके का आता है। मूविंग ऑन टू द पेंशन सेक्टर, पेंशन सेक्टर में बहुत ही लिमिटेड से टॉपिक है, ठीक है। यही एक सेक्टर है, यही एक कंपोनेंट है जो PFRDA को सेबी ग्रेड ए से अलग करता है, सिर्फ यही एक कंपोनेंट है, अदरवाइज द एंटायर थिंग इज सेम हियर।
सो यहाँ पे स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, एन्युटी प्लान, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है यहाँ पर पेंशन में, बट या इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएफआरडी का एग्जाम है, देन पेंशन सेक्टर बिकम्स ऑटोमेटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। द बेस्ट सोर्स इज बेसिकली यहाँ पे दिस इज द सिलेबस पार्ट, और बात करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स ही बहुत लिमिटेड से हैं, वही टॉपिक्स आपको सारे करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, कोई भी टॉपिक्स आपको लीव नहीं करना है यहाँ पर। एंड बात करूँ सोर्सेस की, सबसे अच्छा यहाँ पे गूगल, गूगल में आप एक एक यू कैन से जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े उनको आप गूगल करिए, वहां से यू कैन रेफर द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आप वहां पे जॉट डाउन करके एक प्रॉपर तरीके से नोट बना सकते हैं और उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर पेपर तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता ही है हर कंपोनेंट के केस में। मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाला भी पोर्शन यहाँ पे दिस इज द स्निपेट। और अगर आप यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, आप नबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इसमें से ये कंपोनेंट आप में काफी कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा वहां पर। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, मार्केट स्ट्रक्चर, राइट, देन फर्दर इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ऑल these topics you have already covered if you have been preparing for RBI grade B examination or you can say NABARD grade A examination. Rest of the जो topics है उनको आप आराम से prepare कर सकते हैं, but if I tell you about the most important topics under the economics component here, so this is demand and supply, market structures, national income concepts and measurement, classical and Keynesian approach determination of output and employment, multiplier and accelerator, then एक्सेलरेटर के बाद यहाँ पे ISLM, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको स्पेशल फोकस रखना है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक्स एग्जाम में आने वाले, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज, किसी भी तरीके का यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का ये मतलब है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच हैव द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इनकी पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो काफी ज्यादा है, तो आपको इसलिए इन टॉपिक्स पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी करने हैं, बट इन टॉपिक्स को आप ज्यादा रिवाइज करिएगा। बात करें यहाँ पे सोर्सेस की, तो सोर्सेस सेम सोर्सेस जो हमने यहाँ पे फाइनेंस के लिए भी रेफर किया था। सो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एनसीईआरटी रेफर करिएगा, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज हैं, तो वहां पे आपको जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो इजीली वहां पर आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द previous year paper. Now moving on to the last component, that is Companies Act. Companies Act is the most scoring component in the entire syllabus of entire curriculum of PFRD grade A examination. यहाँ पे बहुत ही limited chapters हैं, ठीक है, बहुत ही limited chapters हैं, like you can see here chapter 3rd, chapter 4th, chapter 8th, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 27। बस यही 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। इन्हीं 7 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी लेस इंपॉर्टेंट, कोई भी मोर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल द टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, कुछ 1-2 चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, बाकी चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, जो आप यू कैन से आप 1 घंटे 2 घंटे में भी आप उसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी लीव नहीं करना है। एंड द बेस्ट सोर्स इज बेसिकली यहाँ पर बेयर एक्ट, जिसको हम बोलते हैं बेयर एक्ट, वो बेस्ट सोर्स है यहाँ पर। और बेयर एक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? बेयर एक्ट आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में। आप बेसिकली यहाँ पर जाएंगे, एक्ट्स एंड रूल्स में क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स दिख जाएंगे, जिसमें से एक एक्ट दिखेगा कंपनीज एक्ट 2013। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को। डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर बुक। आप जो कोई बुक रेफर करेंगे बहुत टाइम टेकिंग होगी, आपको कंफ्यूजन होगा। द बेस्ट सोर्स इज द बेयर एक्ट ओनली। क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से फ्रेम किए जाते हैं, तो जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है आप वही उसी सोर्स को रेफर करें तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड वन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस यहाँ पर कि सारे ही कंपोनेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप खुद से उसे ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी मत डिवाइड करिए कि मैं कंपनीज एक्ट छोड़ देता हूं, मैं फाइनेंस पढ़ लेता हूं, मैं कॉमर्स पढ़ लेता हूं, मैं मैनेजमेंट छोड़ देता हूं। नो, एवरी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट हियर, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इनके मार्क्स के वेटेज की बात करें लगभग सेम है। सो पीएफआरडी जब भी एग्जाम लेता है या सेबी जब भी एग्जाम लेता है तो वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो वेटेज उसको इक्वल रख सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट गाइज, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द ऑल द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा आपके पास यहाँ पे 50 डेज नहीं है, एक्चुअल में आपके पास उससे ज्यादा डेज है, क्योंकि आपके पास 50 + 30 भी है,
यहाँ पर उसके फेज 1 के बाद फर्दर यू विल बी हैविंग फेज 2, और फेज 2 पेपर 2 के लिए सारे टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं वापस से। तो कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर फेज 1, रादर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर फेज 2। इस माइंडसेट से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास टाइम भी है, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको डाउट होगा कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। होना भी चाहिए। रीजन बीइंग आपके पास टाइम यहाँ पे कम है, बहुत सारी चीजें आपको बुक्स लेनी है, बुक्स में से आप उसको टॉपिक्स को फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं आपको, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज देखने हैं आपको, यहाँ पे रिवीजन कैसे करना है, स्टडी प्लान कैसे करना है, तो ये सारी चीजें बहुत सारा है, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है यहाँ पर। एंड दैट इज वाई गाइज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉनसून सिलेक्शन सेल ऑन अवर आरबीए ग्रेड बी एज वेल एज पीएफआरडीए ग्रेड ए कोर्स। दोनों ही कोर्सेज के लिए हम यहाँ पर आपके लिए मॉनसून सेल लेकर आए हैं। यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ दिस सेल आप इस कोर्स को ले पाएंगे 5499 पर, ठीक है। 5499 पे आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा आरबीआई ग्रेड बी का 6+2 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ। एंड यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, तभी आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पर मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे टुडे इज द लास्ट डे, ठीक है। 17 जुलाई जो है वो लास्ट डे है आज सेल की, तो आपको आज ही एनरोल करना पड़ेगा अगर आप इस प्राइस पर चाहते हैं। सिमिलरली बात करूं यहाँ पे पीएफआरडी ग्रेड एग्जाम की, तो उसके लिए भी वी आर रनिंग दिस पर्टिकुलर मॉनसून सिलेक्शन सेल। वहां पर भी यू विल गेट दिस कोर्स ओनली जस्ट एट ₹5133, ठीक है। बहुत ज्यादा, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट आई हैव एवर सीन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगेन यू विल गेट 6+2 मंथ सब्सक्रिप्शन, बट इन ऑर्डर टू गेट कोर्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, ठीक है। तो ये अगेन याद रखिएगा 17 जुलाई दैट इज टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस पर्टिकुलर, फॉर द एनरोलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स एट दिस प्राइस। कल से ये जो प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे सीरियस स्टूडेंट हैं पीएफआरडी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 28 वैकेंसीज के साथ जनरल स्ट्रीम के लिए, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करिएगा। दिस इज द आरबीआई ग्रेड बी कोर्स एंड दिस इज द पीएफआरडी ग्रेड ए कोर्स। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करना गाइस, गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे वी हैव मेंशन द लिंक, क्लिक ऑन द लिंक, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, वॉच द डेमो क्लासेस। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर डिसाइड करना है वेदर यू आर गोइंग टू एनरोल फॉर द कोर्स और नॉट, ठीक है। एंड यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। तो कूपन कोड की फैसिलिटी आपको वहीं पे लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर आप लैंड करेंगे, वहां पर यू विल सी द पेमेंट ऑप्शन एंड उसके ऊपर आपको दिखेगा अप्लाई कूपन। वहां पे कूपन कोड जो भी अप्लाइड होगा यू हैव टू रिमूव दैट एंड यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन कोड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके थ्रू यू विल बी इन टच विथ मी। जब भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको जानना है, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ओवर द ग्रुप and I'll be taking care of your query. And also I keep posting regularly some important information related to your examination that you will also get to know. And अगर आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, you can just call this particular number, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे, जो भी आपकी क्वेरी है that will be resolved. So this is all guys, thank you very much for watching and listening me. I hope this was informative for you. We'll meet in next important videos. Till then, goodbye, happy learning guys, take care.